morning, dear students. Today we are going to start the new chapter, that is chapter 7. Name of the chapter is fractions. So we should know about, in this chapter we will learn about the fractions, type of fractions, and then we will move to the questions. So let us understand fractions क्या होता है. Fraction, suppose if we have one pizza and we want to distribute that pizza among our 4 friends. ठीक है, तो हमारे पास एक पिज्जा है जिसको हमने अपने 4 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो भी हमें इक्वल पार्ट्स देने चाहिए. तो ये फुल पिज्जा था, इसके हमने क्या कर दिए, पीसेस. तो इसके 4 पीसेस कर दिए इक्वल पीसेस. तो ये हमने क्या बना दिए, पिज्जा के फ्रैक्शंस बना दिए. सो ईच फ्रेंड विल गेट 1/4 पार्ट. ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. फाइन. तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं. फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. द अपर वन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. नाउ नेक्स्ट इज मूविंग फर्दर. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है. एग्जाम्पल 5/9, 6/8, 7/8. Here all the numerators are small, like 5 is smaller than 9. 5 is the numerator and the 9 is the denominator. 5 is smaller than 9. Moving further, 6 is smaller than 8. 6 is numerator and 8 is the denominator. So these are called the proper fractions. Improper fractions are those fractions in which numerator is greater than the denominator, like 9/7, 11/5, 8/3. Here numerators are greater than the denominator. Here numerator is 9 and denominator is 7. So 9 is greater than 7. Here 11 and 5 numerator bigger है and denominator smaller है. Here also 8 is the numerator and 3 is the denominator. 8 is greater than denominator. Next one is the mixed fraction. Mixed fraction में sum of whole part and the proper fraction is called mixed fraction. एक आपका whole number होएगा और एक आपका proper fraction होगा. Like 2:1/2. इसको रीड आउट कैसे करते हैं, 2:1/2. And next example is 4:5/7. So now let us move to the next type, that is like fraction. Like fraction क्या होता है, fraction in which the denominators are same, जिसमें same denominators होते हैं. Example 2/9, 7/9, 6/9. जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या हैं आपके, सेम हैं. सो नेक्स्ट वन इज, इसकी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस में ऑपोजिट हो जाएगा फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे आपके, अलग अलग डिनोमिनेटर्स हो जाएंगे. 2/5, 3/8, 7/9. हियर 5, 8 एंड 9 आर द denominators which are different. एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं. Now let us move to the exercise 7.1 of these fractions. Here let us read out the first part, that is write the fraction representing the shaded portion. Here you will be writing, can you see in the first part, this is a triangle and the 2 parts are shaded. ठीक है, सबसे पहले हमने टोटल पार्ट्स काउंट कर लेने. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 4. देयर आर टोटल 4 पार्ट्स एंड इन दिस 4 पार्ट्स 2 आर शेडेड. शेडेड कितने हैं, 2 पार्ट्स शेडेड हैं. सिमिलरली हियर ऑल्सो फर्स्ट वी विल बी काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 boxes are there, and out of 9, how many are shaded? 1 2 3 4 5 6 7 8.
that is 8/9 is the fraction. Similarly you will be doing the other one also. जो ये सारा आपका क्वेश्चन है, you will be completing yourself. So all these parts you will be completing in the book itself. Now next part, question number 2, color the part according to the given fraction. So आपको पास दे रखा है 1/6. There are total 6 parts of the circle, 1 2 3 4 5 6. उसमें से एक आपको शेड करना है. You can use crayons or color pencils to shade this part. Fine. Next one is 1/4. 1/4 total we will check the parts, 1 2 3 4, and one part we need to shade, so we will be shading this part. ठीक है. Similarly next question में 1/3 or you can call it 1/3 means one part you need to shade. You can use color pencils or crayons to color these boxes. So we will be shading this one part. So similarly you will be completing other questions related to this. Now next move to the next further question number 3. Identify the error if any. अब यहाँ पर आपको पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है क्या इस ट्राइंगल में कोई एरर आपको दिख रहा है. 1/3 मीन्स डिवाइडिंग अ होल पार्ट इनटू इक्वल पार्ट्स. फाइन. दोनों यहाँ पर आपका देखो ये डिवीजन इक्वल नहीं दिख रही है. एक पार्ट जो शेडेड पार्ट है वो ज्यादा है एंड जो अनशेडेड पार्ट है वो कम है. दैट मीन्स यहाँ पर जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं है, पार्ट्स जो हैं इक्वल नहीं हैं. ठीक है. दिस ट्राइंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, बट ये दिखा रहा है कि 1/2 मीन्स 1/2 का मतलब होता है मतलब एक पीस के 2 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं. सो दिस सेग्रीगेशन इज नॉट डन प्रॉपरली. तो नेक्स्ट वन इज 1/4. यहाँ पर देखो ये 1/4 ये भी इक्वल पार्ट्स नहीं हो रखे हैं, तो देर इज ऑल्सो एन एरर. मतलब जो सेपरेशन है पार्ट्स की वो इक्वल नहीं हो रखी है. सिमिलरली इन दिस सर्कल 3/4 यहाँ पर भी देखो एक कोई छोटा पार्ट है, कोई मतलब चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है. कोई स्मॉल है, कोई इससे बिग है, कोई सबसे बड़ा है. दैट मीन्स देर इज जो ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं इक्वल नहीं है, जो इक्वल डिवीजन नहीं हो रखी है. यहाँ पर फ्रैक्शन जो है इक्वली डिवाइडेड नहीं है, सर्कल इक्वली डिवाइडेड नहीं है. सो दिस इज द एरर इन दीज क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी विल बी डूइंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. मतलब 8 hours को आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. सो वी नो दैट हाउ मेनी hours आर देयर इन अ डे. There are 24 hours in a day. ठीक है. तो यहाँ पर we will be writing hours in a day, that is 24. तो fractions for 8 hours. They are asking 8 hours को आपने fractions में convert करना है. That is 8/24 will be the answer. Now move to the next one. Move to the next question. Next question is what fraction of an hour is 40 minutes. So what fraction of an hour is 40 minutes. आपको 40 minutes को fractions में convert करना है. And you know that 1 hour में how many minutes are there? That is 60 minutes are there in 1 hour. So 40 minutes को आपको fraction में convert करना है. So 1 hour is equal to that is 60 minutes. You will be writing 60 minutes. ठीक है. उसके बाद you will be writing fractions for 40 minutes, that is 40/60 will be the answer for this question. Now moving further, question number 6. Question number 6 में they are telling you there are 3 boys and Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made up of vegetables and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch boxes. Arya agreed to share his sandwich to the each person will have an
equal share of each sandwich. How can Arya divide a sandwich so that each person has an equal share? So क्या बोल रहे हैं वो कि आर्या जो है सैंडविच को कैसे डिवाइड करेगा कि हर पर्सन को इक्वल शेयर मिल जाए. So क्या होगा? सपोज दिस इज द सैंडविच. ये सैंडविच है, ठीक है. ये वैसे तो हमारे ट्राइंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट आई एम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वी आर डूइंग इट लाइक दिस. ये सैंडविच था, इसके मैंने 3 पीसेस कर लिए, तभी इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है. इक्वल 3 पीसेस करके 1 पीस ये फर्स्ट वाला आर्या को, सेकंड वाला अभिमन्यु को, एंड थर्ड वाला विल गो टू विवेक. सो ये तीनों इक्वल पीसेस हो गए. सो दैट मीन्स सेकंड वाले का भी सेम करेगा. सेकंड वाला सैंडविच जैम का सैंडविच था, उसके भी 3 पीसेस करेगा, एंड ईच वन विल गेट 1 पीस. ईच बॉय विल गेट 1 पीस. अब जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला है कि सेकंड क्वेश्चन का जो 6th क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. अब देखो एक सैंडविच का 1/3 ही मिलेगा उसको. देखो दिस इज अ सैंडविच. अगर हमने सपोज ये वाला पार्ट जो मैं इसको शेड कर रही हूं ये हमने आर्या को देना है, तो आर्या विल गेट 1/3 ऑफ दिस फुल सैंडविच. ठीक है, तो each boy will get 1/3 part of each sandwich. So this will be the answer. So let us write down the how will you be writing in a इसका आंसर कैसे लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट का आंसर, आर्या will divide each sandwich into 3 equal parts and give 1 part of each sandwich to each of them. ठीक है. So नेक्स्ट वाले का आंसर होगा ईच बॉय विल गेट 1/3 पार्ट. 1 सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1/3 पार्ट जो है हर बॉय को मिलेगा.